ہاں یہاں پر ان لوگوں کو دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے جن لوگوں کے دلوں میں بغض رسول پایا جا رہا ہے، عداوت رسول ہے. اسی لیے دلیلیں اپنی جگہ پر میں پیش کروں گا. میلاد منانے کے ثبوت کیا ہیں، دلائل کیا ہیں، قرآن پاک سے بھی ثابت ہے میرے عزیز. قرآن پاک سے میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل فرمائی جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے. انہوں نے دعا کی تھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. اے ہمارے رب آسمان سے ایک دسترخوان اتار. توجہ چاہتا ہوں جسے دلیل چاہیے. آسمان سے ایک دسترخوان اتار. اے اللہ تو میری امت کے لیے آسمان سے خوان نعمت اتار. اور جس دن وہ دسترخوان اترے گا، عیسیٰ علیہ السلام یوں عرض کرتے ہیں تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید کا ہوگا، پچھلوں کے لیے بھی عید کا ہوگا. کون سا دن؟ جس دن سے دسترخوان اترے. قرآن کہہ رہا ہے وہ اگلوں پچھلوں سب کے لیے عید کا دن ہے. اور جس کے صدقے میں پوری کائنات کو دسترخوان ملے، وہ جس دن آئے، کیا وہ اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن نہیں ہوگا؟ قرآن پاک آپ اٹھائیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے خوشیاں منانا جائز ہے ناجائز ہے؟ اس پر تم پڑے ہوئے ہو. آج حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر وش کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس پر آج دیکھیں بہت سارے لوگ ماتم کر رہے ہیں. محرم میں بیچارے کالے لوگ ماتم کی ہیں جو اوپر سے تھے، اب میلاد آتے ہی اندر سے جو کالے وہ ماتم شروع کر چکے ہیں. ان کا صرف اور صرف یہی کہنا ہے رسول کی میلاد یہ صرف بریلویوں کا ہے. اور اسی لیے میں نے شاید کل یا پرسوں کہا تھا، سنی ہو آپ سب سے کوئی پوچھے تو یہی کہو میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہے. قرآن کی آیت کے ذریعے سے بھی میں تمہیں بتاتا ہوں. اللہ رب العزت فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. 11ویں پارے کی آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے اے رسول آپ فرما دیں اپنی امت سے کہ جب جب اللہ کا تمہارے پاس فضل آئے، اللہ کی رحمت اترے، فبذلک فلیفرحوا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کی آیت لفظ پر توجہ دو. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب آپ فرما دیں اللہ کا فضل جب اترے اور اللہ کی رحمت جب تمہارے اوپر آئے، فبذلک فلیفرحوا، تو یہ جیسے ہی ملے امت کو چاہیے کہ خوب خوشیاں منائے. کون کہہ رہا ہے؟ رب ذوالجلال. وہ فرما رہا ہے جب جب میں تم پر فضل اتاروں اور رحمت اتاروں تو تم سب کے سب مل کر خوشیاں مناؤ. فلیفرحوا، سب کے سب چاہیے کہ خوشیاں منائیں. اس صیغے پر، اس لفظ پر توجہ دیں. پھر میں نے پوچھا اے رب ذوالجلال تیری رحمت ہے کیا؟ جب وہ اترے تو ہمیں خوشیاں منانا چاہیے، تیری رحمت کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تجھے معلوم نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو جب وہ رحمت آئے تو چاہیے کہ خوشیاں منائیں. اب یہ قرآن کے حکم سے ہے، جس وقت تم پر کوئی فضل آئے، کوئی رحمت آئے تو خوشیاں منانا چاہیے. اب مجھے بتاؤ رسول رحمت بن کر آئے یا نہیں؟ رسول رحمت بن کر آئے یا نہیں؟ اور جس وقت رسول رحمت بن کر کے آئے ہیں تو ان کو جو رحمت سمجھتا ہے وہ خوشیاں بھی منائے گا. اور خوشیاں کون نہیں منائے گا؟ جس کے لیے وہ زحمت ہو، جس کے لیے زحمت ہو وہ خوشیاں نہیں منائے گا. اس کو بھی شاعر نے، عاشق رسول نے اپنے شعر میں پرو کر کے کہا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اس لیے کہ روایات میں جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس دن شیطان اپنے پیچھے ہاتھ مارتے ہوئے چیخ مار رہا تھا اور مٹی اٹھا کر اپنے سر پر مار رہا تھا اور گھوم گھوم کر کے چلا رہا تھا کہ میری ساری محنتیں برباد ہوئیں، ساری محنتیں غارت ہو گئی. وہ اپنے چیلوں میں، اپنی ذریت میں یہ پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ ساری محنتیں رائگاں ہو گئی. کیوں؟ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس لیے کہ اب وہ شیطان سے بندوں کو آزاد کرا کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف لانے والے تھے. تکلیف کس کو ہو رہی تھی 12 ربیع الاول کو؟ تکلیف کسے ہو رہی تھی 12 ربیع الاول کو؟ یہ سب کو معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، کائنات کو خوشیاں منانا چاہیے. اور یہ احسان ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ مدینے والے جب دیکھ رہے تھے گردنیں پھلان پھلان کر دیکھتے تھے، اچھل اچھل کر دیکھ رہے تھے، دور سے وہ نظر آ رہے تھے. آنے والوں میں 2 لوگ تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور ان کا ادب بھی تو دیکھیں. جب مدینے والے دف بجانے لگے اور اچھل اچھل کر دیکھنے لگے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جبہ اتار دیا
जुब्बा उतार दिया, तहबंद है, और जुब्बा उतार कर एक लकड़ी में लगाया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर झंडे की तरह हिलाने लगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक के ऊपर हिलाने लगे। क्यों किया ऐसा उन्होंने? क्यों किया? यही तो हम भी कहते हैं, जब वो आमद मुस्तफ़ा हो तो हम लहराते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये घड़ी आम घड़ी नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने यूँ किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा भी, अबू बकर इतने दिन से मक्का से चले यहाँ तक पहुँचे, वो आपने जुब्बा उतारा नहीं, लहराया नहीं, मदीना करीब आया और तुम ये अपना जुब्बा उतार करके लहरा रहे हो। सिद्दीक अकबर के इश्क को लाखों सलाम, अदब व एहतराम को लाखों सलाम। अर्ज़ करते हैं, आका बहुत सारे मदीने वालों ने आपको अब तक देखा नहीं, मैं ये सोचता हूँ कहीं वो गलती से मुझे रसूल ना समझ ले, मैंने अपना जुब्बा उतार दिया है ताकि मदीने वालों को पता चले आका और है, गुलाम और है। झंडे लहराते हैं तो पता चलता है आका तशरीफ ला रहे हैं। ये सिद्दीक अकबर ने करके बताया है, जब रसूल तशरीफ ला रहे हो तो झंडे लहराए जाते हैं, इसलिए कि उस घड़ी का अदब हो, उसका एहतराम हो। मदीने वालों ने देखकर ही पहचान लिया, जो लिबास उतार कर आ रहा है वो गुलाम रसूल है, और जिसके सर पर झंडा लहरा रहा है अगर से जुब्बे का हो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने का अदब और एहतराम मदीने वालों ने भी किया था। अब मैं ये कहता हूँ कि जिसे मदीने वालों की खुशकिस्मती मिली वो मेरे आका की मिलाद मनाएगा और मदीने वालों में उसका हशर भी होगा, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की आदत को अपनाएगा दुनिया में क़यामत के दिन वो उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। ऐ वहाबियों, तुम मक्का के इब्लीस के साथ गम मनाओ और तुम्हारा क़यामत के दिन हशर उन्हीं की जमात के साथ होगा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद का एक और जवाज़ है, जहाँ हुजूर की तारीफ़ बयान हो रही हूँ। कहाँ वो उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ जब कोई नहीं था, कोई नहीं, न बुलबुल का तरन्नुम, न फूलों का ये खिलना, कुछ भी नहीं कायनात में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मजलिस सजाई जिसको कहते हैं यौम मीसाक। यौम मीसाक, वादे का दिन। ये कौन सा दिन था? उसमें सिर्फ नबियों की रूहों को जमा किया। उसके बाद कायनात में क़यामत तक पैदा होने वाले सब की रूहों को जमा किया। हम भी थे, आप भी थे वहाँ, हम सब की रूहें वहाँ जमा थी। ये कुरान में है, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम, अल्लाह ने सारे आदम की औलाद से ये वादा लिया है। किस चीज़ का वादा? वो पूरा यौम अलस्त जिसको कहते हैं, यौम अलस्त भी है, यौम मीसाक भी है। करोड़ों थे कि अरबों थे, वल्लाहु आलम। उसमें नबियों की रूहें भी थी, सिद्दीकीन भी थे, शुहदा भी थे, सालिहीन भी थे, औलिया भी थे, मोमिनीन भी थे, काफिरीन भी थे, मुशरिकीन भी थे, सब थे। सब की जमात में अल्लाह ने सबसे पहला सवाल ये किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सारी रूहें चुप थी, खामोश थी। सबसे पहले एक रूह ने जवाब दिया, भला ऐ अल्लाह क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। और ये रूह थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर फिर सारे नबियों ने कहा, नबियों की आवाज़ पर सिद्दीकीन ने कहा, सिद्दीकीन की आवाज़ पर सालिहीन ने कहा, सालिहीन की आवाज़ पर मुत्तकीन मोमिनीन ने कहा, और तमाम रूहों ने पुकारा उसके बाद, ऐ अल्लाह तू ही तो हमारा रब है, तू ही तो हमारा रब है। अल्लाह ने कहा, इस बात का तुम इकरार करते हो, वादा करते हो? सबों ने कहा, हम वादा करते हैं कि दुनिया में जाने के बाद भी तुझको ही रब मानेंगे। लेकिन आने के बाद कुछ रूहें उस वादे पर कायम रही और कुछ रूहें उस वादे को तोड़ चुकी हैं। अल्लाह का बड़ा फजल करम है, वादा वफा करने वाली रूहों में हमारा नाम है। हमने अल्लाह को आज भी रब तस्लीम किया है, अल्लाह इसी पर हमारी मौत अता फरमाए। अब यहाँ पर एक वादा अल्लाह ने अपने रब होने का लिया, मैं रब हूँ या नहीं? सब ने कहा तू ही हमारा रब है। दूसरा, अब मखसूस लोगों की महफिल थी, आम इंसानों की नहीं। 1,24,000 कमो बेश जितने नबी दुनिया में जाने वाले, सब की रूहों को एक जगह जमा किया। ये भी कुरान पाक में मौजूद है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ थुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सारे नबियों से अल्लाह ने एक वादा लिया कि तुम्हें मैं दुनिया में भेजूंगा और तुम्हारी मौजूदगी में अगर मेरा ये हबीब रसूल आ जाए, मेरा ये महबूब रसूल आ जाए, इसकी मीलाद हो जाए, यही तो बात है, ये रसूल की विलादत हो जाए, तो तुम क्या करोगे ऐ सारे नबी? ये रसूल का यहाँ पर उस आलम अरवाह में कसीदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तारीफ बयान हो रही कि नहीं? अल्लाह फरमा रहा है, सारे रसूलों ने कहा, सारे रसूलों से अल्लाह ने फरमाया लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, तुम सब के सब इस पर ईमान लाओगे
इस रसूल पर ईमान लाओगे, तुम्हारी अपनी शरीयतें, तुम्हारी सारी उम्मतें सब एक तरफ होंगी। अगर ये रसूल तुम्हारी हयात में आ जाए तो तुम्हारी शरीयतें मनसूख होंगी। तुम इस रसूल पर ईमान लाओगे, वला तंसुरुन्ना, और उसकी मदद भी करोगे। अब इतना ही नहीं, अल्लाह ने हुक्म दिया, उसके बाद पूछा, क़ाल अअक़ररतुम, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो? वअख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, क़ालू अक़ररना, सभी की रूहों ने कहा, ऐ अल्लाह हम इकरार करते हैं कि ये रसूल जब आएगा हम इस पर ईमान लाएंगे, हम इसका ताउन करेंगे, हम इसकी मदद करेंगे। अल्लाह ताला ने आखिर में फरमाया, क़ालू अक़ररना क़ाल व अना ज़ालिका मिनश शाहिदीन व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह ने फरमाया, याद रखो इस बात पर मैं भी तुम्हारे साथ गवाह रहूंगा। हुजूर पाक की आमद का तज़किरा कहाँ हो रहा है? हुजूर की विलादत से कई हजार साल पहले, हुजूर की आमद से कई हजार साल पहले। मुझे बताओ, मीलाद की मजलिस आज हम सजा रहे हैं, मैं तो कहता हूं जब कोई नहीं था तब भी अंबिया के दरमियान अल्लाह ने अपने रसूल की तारीफ बयान की। यही तो मजलिस मीलाद का मकसद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत पाक के तज़किरे ये यौम अलस्त में भी थे, यौम मीसाक में भी थे। अब सुने, हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जैसे ही मेरे बतन पाक में मेरे बेटे का हमल करार पाया, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, कोई आलाइश, कोई इस तरह की नापाकी हमने नहीं देखी। हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, रजब का महीना गुजरा, शाबान का महीना आया, रात को मैंने एक मरतबा देखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी आमिना से कहते हैं, आमिना मुबारक हो, तूने कायनात के पूरे आका को अपने बतन पाक में जगह दी है, तुझे सआदत वाला एक लड़का मिलेगा। उसके बाद हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं, रमजान का महीना आया, रमजान का महीना जैसे ही आया, हज़रत बीबी आमिना ने आवाज़ें सुनी, कहा गया आमिना को हर आलाइश से पाक कर दो, उसके अंदर मौजूद बच्चे को हर तरह के वसवसों से पाक कर दो। अब जब रमजान का महीना गुजरा, शव्वाल का महीना आया, हज़रत बीबी आमिना कहती हैं, शव्वाल के महीने में मैंने देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं और एक झंडा उठाए हुए हैं, और वअअलमहा बिरुतबती सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद बाला मर्तबे का कसीदा पढ़ा और बीबी आमिना को कहा, मुबारक हो, मुबारक हो। ये शव्वाल का महीना गया, ज़िलक़ादा का महीना आया। हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं, हर माह में मैं किसी नबी की ज़ियारत करती और वह मुझे मुबारकबादी देते और मरहबा मरहबा कहते। ज़िलक़ादा गुजरा, ज़िलहज्जा आया, ज़िलहिज्जा गुजरा, मुहर्रम का महीना आया। इस हमल पाक को सफ़र के महीने में 8वां महीना लग चुका था। सफ़र का महीना ये बड़ा मुबारक महीना था। बीबी आमिना कहती हैं, मेरे बतन पाक के 8 महीने के हमल में कभी मुझे बोझ नहीं महसूस हुआ, कभी तकलीफ नहीं हुई, कभी ऐसा उठाया नहीं। बीबी आमिना फरमाती हैं, सफ़र के महीने में जो चीज़ें मैंने देखी वो बहुत अजीबो गरीब थी, यहाँ तक कि मैं रात के वक्त अगर घर के ऊपर नज़र करती तो बदलियाँ मुझे नज़र आती और उसमें बात करने की आवाज़ें सुनाई देती। एक दूसरे को कोई मुबारकबादी देता था, मुझे मालूम नहीं था वो कौन सी मखलूक है जो बात करती है। पूरे सफ़र के महीने में हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं, अजीब व गरीब बातें मैं आसमान पर होते हुए सुनती थी। कुर्बान जाओ मेरे अजीज़ों, जिस माँ के पेट में हमारा आका जलवाबार है, उस माँ की आंखें क्या क्या देख रही हैं। हज़रत इब्राहीम को देख रही हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, और कायनात में होने वाले अजीब व गरीब लम्हात को देख रही हैं। अब सुनो, रबीउल अव्वल शरीफ का चांद जगमगाया, हिलाले रबीउल अव्वल आया। बीबी आमिना फरमाती हैं, अचानक मुझे हुराने जन्नत के तराने सुनाई देने लगे। वो गुनगुनाती थी, रात भर मुझे मीठे मीठे तराने सुनाई देते। बीबी आमिना फरमाती हैं, रबीउल अव्वल की पहली गुजरी, दूसरी गुजरी, तीसरी गुजरी, ये दिन गुजरते गए, नबियों की बशारतें आई, यहाँ तक कि रबीउल अव्वल की 10वीं तक मैंने देखा जिब्राईल अमीन तशरीफ लाए हैं और उन्होंने देखा, सारे मलाइका से कहा, सफ़ें बांध लो, अल्लाह का हबीब आने वाला है। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमिना फरमाती है, मैं ये 2 रोज कब्ल से देख रही थी हुराने जन्नत के तराने, यहाँ तक कि 11वीं शब आई, 11वीं रबीउल अव्वल आई, उस दिन भी मैंने अजीब व गरीब बातें सुनी, अजीब व गरीब रोशनियां देखी। 12वीं शब आई, कहती है बीबी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मेरी पेशानी से अचानक एक नूर चमका, मेरे घर की दीवारों पर रोशनी हुई, यहाँ तक कि सैयदा कायनात आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, मैं मक्का में सोई हुई थी लेकिन बसरा के महल्लात को वहीं से देख रही थी, शाम के महल्लात को, मुल्के शाम के महल्लात को मैं उस नूर की रोशनी में देख रही थी। कुर्बान जाओ ऐ सुन्नियों, जिसके बतने पाक में हमारा आका है, वो मक्का से बसरा तक देख सकती है, मक्का से शाम तक देख सकती है, तो वो रसूल क्या नहीं देख सकता? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा
तुम पे करोड़ों दुरूद। बीबी आमना फरमाती हैं 12वीं शब आई, मैंने देखा मेरी पेशानी से एक नूर जगमगाया, उससे बसरा के महलात रोशन हुए। मैंने शाम के महलात को देखा। अब यहाँ से मक्का से बसरा काफी 100 किलोमीटर है, शाम 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। इतनी दूर तक बीबी आमना देखती रही। रात के पहर गुजरते रहे, रात के लम्हात गुजरते रहे। वही रात है जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं। ये 12वीं शब थी। बीबी आमना की कैसी शब रही होगी, अंदाजा तो करो। हज़रत आमना फरमाती है मैंने आंख उठाकर देखा तो मुझे फरिश्तों की सफ़ें नजर आई। जिब्राइल कह रहे हैं ऐ मलाइका सफ़ें बांध लो, अल्लाह का नबी आ रहा है। सफ़ें तरतीब दी जा रही हैं, सबके हाथों में मशाले हैं। और अचानक बीबी आमना फरमाती हैं 12वीं शब की आधी रात गुजरी होगी, हज़रत जिब्राइल उतरते हुए दिखाई दिए। हज़रत जिब्राइल आए, एक मशरिक में झंडा गाड़ा, एक मगरिब में झंडा गाड़ा, तीसरा काबे की छत पर झंडा गाड़ा। काबे की छत पे झंडा गाड़ा, रूहुल अमीन गाड़ा, काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा, सुबह शबे विलादत। ये जिब्राइल अमीन ने बशारत दी। मोमिनो सुन्नियो झंडे लहराओ, इसलिए कि जिब्राइल अमीन की सुन्नत है। जिब्राइल अमीन ने 3 झंडे गाड़े, बामे काबा पर भी, मशरिक में भी, मगरिब में भी। मशरिक और मगरिब में क्यों गाड़ा, इसलिए कि बताने के लिए कायनात के इस आलम के आका की खुशियां मनाना मक्का वालों की ही सिर्फ खुशकिस्मती नहीं, सिर्फ मदीने वालों के हिस्से में नहीं, मशरिक और मगरिब में बसने वाले सारी मखलूकात इन 2 झंडों के बीच में रसूल की आमद की खुशियां मनाएगी। जिब्राइल अमीन खुशियां मना रहे हैं। बीबी आमना फरमाती हैं रात के आखिरी पहर थे, अचानक सुबह सादिक का वक्त तुलू हो रहा था। वही साअत, वही घड़ी जिसको इमाम आले सुन्नत ने कहा जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, ये घड़ी दुनिया की सबसे अजीम घड़ी है, ये साअत दुनिया की सबसे मकबूल साअत है। मैं समझता हूँ न शबे कद्र वहां को पहुंचती है, न शबे रमजान की ईद वहां पर पहुंच सकती है। कोई घड़ी उस घड़ी का मुकाबिल नहीं हो सकती जिस घड़ी में कायनात का आका मौला जलवाबार हो रहा है। बीबी आमना फरमाती हैं सुबह सादिक हुई, मेरे अजीजों और माओं को डिलीवरी के वक्त और विलादत के वक्त दर्द शुरू हो जाता है। दर्द सह जिसको कहते हैं, वो तड़पती हैं। लेकिन बीबी आमना फरमा रही हैं मैं ठंडक महसूस कर रही थी, खुशियां महसूस कर रही थी, पेशानी से लेकर तलवों तक ठंडक ही ठंडक थी। अचानक मेरे घर का दरवाजा बंद था। रात भर तो जन्नत की हूरों के तराने सुनती रही, फरिश्तों की सफ़ों को देखती रही। लेकिन कहती हैं सुबह सादिक होने लगी तो मैंने अचानक मेरे घर में 3 औरतों को आते हुए देखा। वो औरतें बड़ी हसीन व जमील थी, खूबसूरत थी और अजीब शान की थी। वो मेरे घर के अंदर आई, कोई मेरे दाएं खड़ी हो गई, एक बाएं खड़ी हो गई, एक सिराने के पास खड़ी हो गई। मैंने पूछा यह हज़रत आमना फरमा रही है आने वाली खवातीन तुम कौन हो, इस तरह घर में कैसे आई हो? वो खवातीन कहती हैं ऐ आमिना न घबरा, हम तेरे आने वाले मौलूद की दाया बनकर आई हैं। हम कौन हैं तुझे बताती हैं। एक खातून ने कहा मेरा नाम सैयदा हव्वा है, मैं पूरी कायनात की माँ हूँ। दूसरी कहती है मेरा नाम सैयदा आसिया है जो जन्नत की पाकीज़ा खवातीन में से है, जिसकी पाकी की कसम कुरान खाता है। ऐ मेरे अजीजों, ये 3 पाकीज़ा खवातीन बीबी आमिना के सिराने खड़ी हैं, विलादत बासआदत के वक्त दाया बनकर के आई हैं। क्या शान है आका तुम्हारी, क्या शान है आका तुम्हारी। हाँ, दुनिया में किसी को यह सआदत नहीं मिली होगी जिसको किसी अजनबी ने न छुआ। वो बीबी मरियम मेरे रसूल की दाया बनकर आई हैं, बीबी आसिया दाया बनकर आई हैं। अचानक मेरे सैयदा कायनात आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं इन दायाओं से बातचीत हो रही थी। सुबह सादिक की घड़ी आई। अल्लाह अल्लाह, वो नूर खुदा, वो रहमत आलम, वो रसूल पाक जिसको कायनात के आका व मौला होने का शरफ अल्लाह ने अता किया, वो इस दुनिया गीती में जलवाबार हुआ। मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हुई। जब मैंने आंखें खोली, हसीन गुलाब से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा, वो नूर वाला तशरीफ ला चुका था। वो कायनात को जगमगाने वाला, वो आलम बाला का रसूल, वो आलम सुफला का रसूल, वो आलम जिन्नात का रसूल, वो आलम मलकूत का रसूल, वो आलम हैवानात का रसूल, वो 18,000 आलमों का रसूल बीबी आमिना के बतन पाक से जलवाबार हुआ। लेकिन किस शान से, अलग ऐसे आम बच्चों की तरह न समझो। बीबी आमिना फरमाती हैं मैंने नजर उठाकर देखा, चांद से ज्यादा हसीन चेहरा है, न जिसमें पाक पर पेट की कोई गंदगी या आलाइश लगी हुई, कुछ नहीं, बल्कि वो नहा करके चमकते हुए बूंदों के साथ आया हुआ था। ऐसे तारे टपक रहे थे, तारों की तरह चेहरे पाक पर पानी के कतरे झिलमिला रहे थे। बीबी आमिना फरमाती हैं मैंने नजर किया, हजरत आमिना वो जो तस्वीर खींची है, सदा कुर्बान जाओ मेरे अजीजों, कायनात के आका मौला की तस्वीर, उनकी माँ से ज्यादा हसीन कौन बता सकता है। हजरत आमिना कहती हैं मैंने अजीब व गरीब बात देखी। मेरा शहजादा जब जलवागर हुआ, आम बच्चों की तरह
रोते चिल्लाते नहीं आया, बल्कि सबसे पहले मैंने सुना उनकी जुबान पर था उम्मती 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 उम्मती। उसके बाद मैंने उनको सजदे के आलम में देखा। कौन है वो बच्चा जो पैदाइश के दिन अपने मौला के यहाँ सजदा रेज है, पेशानी जमीन पर है, कायनात के आका व मौला एक दिन के हैं आज, लेकिन सजदे के आलम में है। हज़रत आमना फरमाती हैं जैसे ही ये 3 दायाओं ने उठाया, अल्लाह अल्लाह, बीबी आमना फरमाती हैं खुशी से मैं झूम गई। न दर्द था न तकलीफ थी, लेकिन इस हसीन गुलाब को देखने के बाद रूह में और एक खुशी और फरहत और इंबसात आ गया। उसके बाद कहती हैं मैंने नजर किया, नाफ कटी हुई थी। जब वो बच्चों की नाफ होती है, काटा जाता है 6 दिन के बाद, आप नाफ बुरीदा थे। और मैंने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खतना शुदा पैदा हुए थे, मखतून थे। और मैंने देखा, बीबी आमना फरमाती हैं रसूल पाक के चेहरे को आंखों में सुरमा पहले से लगा हुआ था। मकहूलन मदहूनुन मखतूनुन मलफूफ